Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Raffle BV College Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, today in this session, we will discuss about the relationship between average revenue and marginal revenue. Now, we already learned the various concept of revenue, that is total revenue, then average revenue and marginal revenue. So, what is total revenue? Total revenue is what? Total revenue received by selling certain amount of output. And how it is obtained? It is obtained by multiplying price of the product and the number of units sold. We already learned. Okay. Then after average revenue. So average revenue shows the revenue earned per unit of output. Na? And how it is obtained? Average revenue is what? Total revenue divided by Q. हम लोग ने पढ़ लिया है. Now third topic marginal revenue. ये भी हम लोग ने पढ़ लिया कि net addition to the total revenue by selling an additional unit of output, that is called as what? Marginal revenue. So today in this session we will discuss the relationship between average revenue and marginal revenue under different market structure. Okay. Now in syllabus it is only given that is revenue curve. स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं दिया बट खाली दे दिया रिवेन्यू कर्व. ओके, तो ये ओल्ड सिलेबस में ये टाइप का क्वेश्चन था, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. बट वो रिलेशनशिप किस में पढ़ना है? अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? वी ऑलरेडी लर्न इन लोअर स्टैंडर्ड. ओके, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, देन मोनोपोली, monopolistic competition, oligopoly. So these are the major 4 market structure. Okay, so here this market structure, it is categorized into 2, that is perfect competition and the imperfect competition. किस में डिवाइड करना है? परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड इज व्हाट? इम्परफेक्ट कंपटीशन. ओके, सो वी हैव टू लर्न the relationship between average revenue and marginal revenue under perfect competition. And second point is what? Relationship between average revenue and marginal revenue under imperfect competition. चलो, first is what? The relationship between AR and MR under perfect competition. Now, what are the features of perfect competition? Again, you already learn in lower standard. Okay, so what is perfect competition? कि in a perfect competition there are large number of buyer and seller. आपने पढ़ा होगा. There are large number of buyer and seller and each seller producing homogeneous product. Now here homogeneous product is what? Same type of product. It means there will be no any difference in the product of the two seller. सपोज मैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता हूं और आपकी कंपनी है और आपके जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम प्रोडक्ट है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? होमोजीनियस प्रोडक्ट. ओके, देन अनदर फीचर्स आपने पढ़ा होगा, दैट इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट. एंड एनी फर्म कैन एंटर इनटू द इंडस्ट्री एंड एनी फर्म कैन लीव द इंडस्ट्री. ये भी आपने पढ़ा होगा. ओके, देन उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, ये हम लोग को एज्यूम करना है. देन इन अ perfect competition the price is same. Why? Because product is same, so price is also the same. So these are the common features of perfect competition. So in a perfect competition what is the relationship between average revenue and marginal revenue, ये हम लोग को पढ़ना है. So first of all here some of the description regarding the perfect competition. So in a perfect competition market there will be large number of buyer and seller. फर्स्ट क्या होगा? देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड ईच सेलर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट. होमोजीनियस प्रोडक्ट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इज सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट. देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू सेलर. ओके, एंड मेन इज व्हाट? प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कलेक्टिव फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ओके, नाउ ये पूरा प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके समझाना होता है. से एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई, ऐसा कुछ पोजीशन है, डिमांड एंड सप्लाई. ओके, एंड यहाँ पे प्राइस है. ओके, एज्यूम कि 10 रुपीज पे डिमांड 100 यूनिट्स का है. ओके, एंड मार्केट में सप्लाई कितना है? 90 रुपीज का है. ओके, उसका मतलब क्या? सॉरी, 90 यूनिट्स का है. डिमांड 100 यूनिट्स का एंड सप्लाई 90 यूनिट्स का. इट मीन्स यहाँ पे डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई. ओके, तो सेलर के ऊपर क्या प्रेशर आएगा? अपवर्ड प्रेशर आएगा. चलो प्राइस को हाई कर दो, बिकॉज कंज्यूमर्स को ज्यादा परचेज करना है एज कंपेयर टू अवेलेबल इन दी मार्केट.
सो सेलर क्या करेगा, प्राइस को इंक्रीज कर देगा। तो सेलर क्या किया, प्राइस को इंक्रीज करके 11 कर दिया। नाउ 11 किया तो सपोज सिचुएशन डिमांड कम हो गई, 90 हो गई, ओके, एंड सप्लाई भी 90 हो गया, यानी इक्वल आया। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इक्वल, ओके। सो इसे प्राइस फिक्स होता है इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ओके। सपोज अभी 9 रुपीज पे ऐसा सिचुएशन आया था कि डिमांड और वी कैन से 9 रुपीज पे सप्लाई कम था मार्केट में और सप्लाई इंक्रीज हो गया था। इन शॉर्ट दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होता है ना, वहां पे प्राइस डिटरमाइन होती है। सो उसके लिए एक डायग्राम भी ऐसा ड्रॉ होता है लाइक दैट, कि वी ऑल नो दैट के शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोप, okay, and the shape of the supply curve is what, upward slope. So जहाँ पे intersection point है, that is what equilibrium. So this is what equilibrium price. तो यहाँ पे प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स होता है इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज प्रोडक्ट इज व्हाट, होमोजीनियस, सेम है, okay. So price is determined by the collective forces of demand and supply, okay, and only one price prevail for the whole industry, okay. बेस्ट एग्जांपल कि शुगर इंडस्ट्री, ओके। सो जितने भी शुगर इंडस्ट्रीज है, सो जो लोग शुगर प्रोड्यूस करते हैं ना, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंस नहीं है बिटवीन शुगर ऑफ दैट वलसाड डिस्ट्रिक्ट और या बारडोली डिस्ट्रिक्ट या मांडवी डिस्ट्रिक्ट शुगर फैक्ट्री, किसी का शुगर में कोई डिफरेंस नहीं है। सो प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। और वो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, कलेक्टिव फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज वाई ओनली वन प्राइस प्रिवेल फॉर द होल इंडस्ट्री। नाउ बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर है ना, सो बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सेलर ना, द क्वांटिटी सोल्ड बाय ईच सेलर इज वेरी इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट सोल्ड इन द मार्केट। इट मीन्स कि इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट द नंबर ऑफ सेलर इज सो मैनी, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सो एक सेलर का जो आउटपुट है ना, वो जो मार्केट में सेल करते हैं उसका आउटपुट, वो एकदम स्मॉल पोर्शन होगा एज कंपेयर टू द टोटल आउटपुट सोल्ड इन द मार्केट, ओके। सो सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द आउटपुट, ओके। यानी सेलर अपना आउटपुट को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वो मार्केट प्राइस को कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज एक सेलर का जो आउटपुट सोल्ड है ना, इट इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल आउटपुट सोल्ड इन द मार्केट, ओके। सो सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द आउटपुट। सो रिमेंबर कि इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म, it is parallel to the x-axis. It is parallel to the x-axis. आया समझ में? So we can see with the help of one illustrative example. Now first is what, unit sold, it is denoted as Q. Price of the product, it is denoted as what, P. Okay, so we can get total revenue, that is TR. So TR का फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस इंटू Q. So फर्स्ट कॉलम इंटू सेकंड कॉलम आप करोगे ना, तो हमको TR मिलेगा। Then after we have to calculate the AR. So what is the formula of AR? TR upon Q. And what is the formula of MR? That is marginal revenue. TR of N minus TR of N minus 1. So first में देखो 1 into 10 equal to 10, 2 into 10 20, 3 into 10 30, 4 into 10 40, 5 into 10 50. तो हम लोग को TR का कॉलम मिल गया। Now AR कैसे होगा, एवरेज रेवेन्यू अभी देखो, TR upon Q, यानी 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 1 10 आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 10 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 3 10 आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 3 10 आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 5 10 आएगा। सो यहाँ पे AR का कॉलम आ गया 10 10। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, MR, मार्जिनल रेवेन्यू के कॉलम को देखो, टोटल रेवेन्यू ऑफ N माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ N। एंड अनदर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग MR इज व्हाट, ये हम लोग ने सीखा था ना, दैट इज डेल्टा TR अपन डेल्टा 1 यूनिट Q, सीखा था ना। नाउ TR की कॉलम का देखो, एज्यूम 0 यूनिट सोल्ड, तो प्राइस भी 0, तो यहाँ पे भी 0 आने वाला है। चलो चेंज इन TR, सो 0 से 10, तो कितना चेंज आया 10, 0 से 1 चेंज कितना है 1, सो 10 डिवाइडेड बाई 1 10, आंसर आया 10। चलो नेक्स्ट में देखो,
10 से 20 चेंज आया, 10 से 20 हुआ तो चेंज कितना है 10, 1 से 2 आया तो 1, सो अगेन आंसर इज व्हाट 10, क्लियर। 20 से 30 कितना चेंज 10, 2 से 3 कितना चेंज 1, सो 10 डिवाइडेड बाय अगेन 10। सो आप देखो खाली चेंज 10 10 का हो रहा है, सो MRB हर एक में कितना आएगा 10 10 10 आएगा, क्लियर। सो by looking to this illustrative example we can clearly understand the relationship between AR and MR. Okay, so if the price is same, if the price is same ना तो AR तो सेम ही रहने वाला है, और हम लोग ने वो भी सीखा है कि प्राइस इज इक्वल टू AR, जो प्राइस है ऑलवेज AR बनता है। ओके, सो AR सेम, सो MR इज ऑल्सो सेम इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो हम लोग डायग्राम ने ड्रॉ किया, देखो कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड द रेवेन्यू इन ऑन वाई एक्सिस। नाउ यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 जो हम लोग के टेबल में आप देख लेना, प्राइस 10 था एंड वो केसेस में AR एंड MR सब सेम था, दैट इज 10 10 10। दैट इज वाई जो ये लाइन है ना वो तीनों तीन की लाइन बन जाएगी, प्राइस इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, क्लियर। देखो आप हर एक का अमाउंट सेम है ना, प्राइस का, AR का एंड द MR का। सो एक ही लाइन में क्या होगा, प्राइस भी बनेगा, AR भी बनेगा एंड MR भी बनेगा। दिस इज व्हाट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, सो आपको क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना है, दैट इज रिलेशनशिप। सो इन दिस डायग्राम एक्स एक्सिस मेजर और रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड and the y-axis represent the price per unit. Okay, so under perfect competitive market price of the unit remain constant, so MR curve is coincide with the AR curve. So relationship is what, कि price is same, price is same, so price and AR is equal, so MR is also equal. It means what, जो आपका AR का लाइन है ना, कर्व है ना AR के लाइन को, उसको MR का लाइन कोइंसाइड करेगा, एक दूसरे के ऊपर आएगा। सो हियर P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो रिलेशनशिप क्या हुआ, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट AR it is a straight line parallel to x axis, so MR is also straight line parallel to x axis. So here MR is coincide with AR. This is what main conclusion of this topic. Okay, so MR curve is what, it is coincide with the AR curve. Clear all of you? Chalo, next is what, AR and MR under imperfect competition. Now here imperfect competition, it is include monopoly market as well as monopolistic competition market. Okay, now why it is categorized as imperfect competition, because here price is not same, price always क्या रहता है अलग अलग रहेगा, सो प्राइस डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ पे दिस इज दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। सो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन such as monopoly market and monopolistic competition, the firm can sell more quantity by lowering its price. Okay, यानी it means कि in imperfect competitive market or in monopoly or monopolistic competition market, if the firm want to sell more output, if the firm condition, if the firm want to sell more output ना, he can do so only by lower down the price. प्राइस को कम करेंगे तो ज्यादा यूनिट सेल कर पाएगा। Okay, so under imperfect competition markets such as monopoly and monopolistic competition, a firm can sell more quantity by lowering the price. ना प्राइस कम करेंगे, so what happen, the average revenue कर्व डाउनवर्ड जाएगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोप जाएगा ना, सो MR कर्व इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोप जाएगा, बट MR falls much faster than the AR curve. That is why MR curve lie below than the AR curve. ओके, सिंपल सा टर्म है कि जब प्राइस कम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आपका कम होता जाएगा। ओके, सॉरी, प्राइस कम करते जाएंगे एज द यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ाते जाएंगे तो प्राइस कम करेंगे, सो नो डाउट टोटल रेवेन्यू तो बढ़ता जाएगा, बट आपका पर यूनिट दैट इज एवरेज रेवेन्यू कम होता जाएगा, and marginal revenue also downward slope, but
मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रेट से डाउनवर्ड होगा एज कंपेयर टू द AR का. सो इन imperfect competition, what is the main relationship between AR and MR? कि under imperfect competition, average revenue it is a downward slope, marginal revenue also downward slope, but marginal revenue slope much faster than the average revenue curve. That is why marginal revenue curve it is below than the average revenue curve under imperfect competition. And the reason is only कि if the firm want to sell more output ना, it has to lower down the price. Okay, so हम लोग again illustration में समझेंगे. अगेन सेम यूनिट सोल्ड क्यू, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पी. सो हम लोग को टोटल रेवेन्यू मिलेगा. नेक्स्ट कॉलम AR कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट कॉलम MR कैलकुलेट करना है. देखो सेम फॉर्मूला. सो 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28. ओके, एंड यहाँ पे मेन आपको ये सिखाना था कि इफ द फर्म वांट टू सेल मोर आउटपुट, यानी सपोज 1 यूनिट फर्म ने बेचा एट अ प्राइस ऑफ ₹10. अभी हमको 2 यूनिट बेचना है, तो कैसे बेच पाएगा? बाय लोअर डाउन द प्राइस. सो 10 से 9 किया. अगेन हमको ज्यादा यूनिट सेल करना है, सो 9 से 8 किया. अगेन फर्म वांट टू सेल मोर आउटपुट, अगेन लोअर डाउन द प्राइस. इट मींस इफ द फर्म वांट टू सेल मोर आउटपुट ना, इट हैज टू लोअर डाउन द प्राइस. ओके, तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट TR मिलेगा. सो TR इज व्हाट P इंटू Q ना. सो 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28 मिलेगा ये कॉलम. चलो नेक्स्ट इज व्हाट AR का कॉलम. सो AR इज व्हाट TR अपॉन Q. सो 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 7. आया ना. अभी आप नोट करो कि ऑलवेज प्राइस एंड AR सेम रहता है, जो हम लोग ने प्रूव भी किया थियोरेटिकल में और विथ मैथमेटिकल इक्वेशन. प्राइस एंड AR ऑलवेज बी सेम. क्लियर. सो लास्ट कॉलम इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू का अगेन फॉर्मूला मैंने आपको बोला ना, दैट इज डेल्टा TR अपॉन डेल्टा 1 यूनिट Q. ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. सो चेंज कितना है देखो, एज्यूम 0 यूनिट 0 प्राइस, सो TR भी 0. सो 0 से 10 कितना चेंज आया 10, एंड 0 से 1 1, सो 10 आएगा फर्स्ट में. अभी 10 से 18 यानी कितना चेंज आया 8, एंड 1 से 2 यानी कितना चेंज 1. सो 8 डिवाइडेड बाई 1 8 आंसर. क्लियर. 18 से 24 यानी कितना चेंज 6, 2 से 3 कितना चेंज 1. सो 6 डिवाइडेड बाई 1 6. दिख रहा है आपको. सो दिस इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू. सब ये टेबल से देखो कि जैसे यूनिट सोल्ड बढ़ता जाएगा तो AR डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है, MR ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोप जा रहा है, बट MR स्लोप्स फास्टर. वाई? चलो पहले में तो 10 10 ही दिख रहा है. नाउ AR का वैल्यू 9 है, बट MR का वैल्यू देखो 8 है. यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 6 है, 7 है तो यहाँ पे 4 है, 6 है तो यहाँ पे 2 है, 5 है तो यहाँ पे 2 है, 0 है. इट मीन्स MR का फॉलिंग रेट ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू. सो उसका कर्व क्या बनेगा? AR डाउनवर्ड स्लोप जाएगा, MR भी डाउनवर्ड स्लोप जाएगा, बट MR ज्यादा रेट से डाउनवर्ड स्लोप जाता है. दैट इज वाई MR कर्व इज बिलो देन AR कर्व. MR कर्व क्या जाता है? MR इज बिलो देन AR कर्व अंडर imperfect competition. Okay, so in this diagram, price and the AR falls with increase in the sales. So MR also falls with increase in the sales, but MR falls at a faster rate than the AR curve. That is why MR curve is below than the AR curve. Clear? So this is what relationship between AR and MR under perfect competition and imperfect competition. So यहाँ पे हम लोग का चैप्टर नंबर 3 ओवर हो चुका है. ओके, सो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. क्लियर? बाय, टेक केयर.